آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ آج دوپہر تک ہر حال میں اضافی پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے سخت ہدایت کے بعد متعلقہ ایجنسی اور کانٹریکٹر آ گئے حرکت میں۔ اضافی واٹر سپلائی کے لیے پمپنگ کا آج دوپہر سے کر دیا گیا آغاز۔ ملاوٹی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف FDI کی چھاپہ مار کارروائی کا سلسلہ جاری۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے ایک بڑے ریکٹ کا کیا پردہ فاش۔ 3500 لیٹر مشتبہ ملاوٹی دودھ کیا گیا ضبط، 2 ڈیریاں سیل۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات اندھاری میں واقع شری مہند گروکل کے طلباء میں مبینہ فوڈ پوائزننگ، 16 طلباء گھاٹی اسپتال میں زیر علاج۔ 2 روز قبل منگوائی گئی نوڈلز کھانے سے ہوئی ہوگی طلباء کی طبیعت خراب، ماہرین کا قیاس۔ اور ATS کی بڑی کارروائی، 14 مشتبہ افراد کی تلاش میں اورنگ آباد سمیت 4 اضلاع میں بیک وقت مارے گئے چھاپے۔ سجاد بھٹی کے یوزر ID سے مبینہ رابطے کے شعبے میں کی گئی کارروائی، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک آلات کیے گئے ضبط۔ خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے سخت موقف اپنانے کے بعد متعلقہ ایجنسی اور ٹھیکیدار حرکت میں آ گئے اور اضافی پانی کے لیے آج سے پمپنگ شروع کر دی گئی۔ ناظرین، گزشتہ روز اسمارٹ سٹی دفتر میں میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی صدارت میں واٹر سپلائی سے متعلق ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں بند پڑی پمپنگ، جیک ویل کی مرمت اور نئے والوز کی تنصیب کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران کمشنر نے متعلقہ ایجنسی MJP کے افسران اور میونسپل انجینئرز کو واضح ہدایت دی کہ 10 جولائی کو دوپہر تک ہر صورت میں پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ اس مقصد کے لیے خراب والو فوری تبدیل کرنے، تمام ضروری تیاریاں مکمل کرنے اور کسی بھی قسم کی تاخیر نہ ہونے کو یقینی بنانے کے احکامات دیے گئے۔ جب ایجنسی کی جانب سے کام میں تاخیر کی وجوہات پیش کی گئیں تو کمشنر نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈیڈ لائن پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اب کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، پہلے کام مکمل کیجیے۔ انہوں نے اپروچ چینل کا کام بھی فوری طور پر مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ آج منعقدہ پریس کانفرنس میں کمشنر امول ایڑگے نے بتایا کہ آج سے اضافی پانی کی لفٹنگ شروع ہو چکی ہے اور جیسے ہی پائپ لائن مکمل طور پر بھر جائے گی، شہر کے مختلف علاقوں میں مرحلہ وار پانی کی سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے مزید بتایا کہ واٹر سپلائی اسکیم میں 5 والوز میں خرابی پائی گئی، جن میں سے ایک والو فوری طور پر تبدیل کرنا ضروری ہے، جبکہ آئندہ تمام خراب والوز بھی تبدیل کر لیے جائیں گے۔ اس کام کے لیے دوبارہ شٹ ڈاؤن لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 700، 900 اور 2500 ملی میٹر کی پائپ لائنوں کو آپس میں جوڑا جائے گا تاکہ پانی کی تقسیم کا نظام مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ کراس کنیکشن کے کام کے دوران بھی کچھ وقت کے لیے سپلائی بند رکھنا پڑے گی۔ کمشنر کے مطابق بجلی کے بل کی ادائیگی کر دی گئی ہے، جس کے بعد متعلقہ لائن دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ٹھیکیدار نے تحریری طور پر یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ اس نوعیت کی کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پرانی سپلائی اسکیم کو مطلوبہ پریشر برقرار رکھنے کے لیے اضافی پانی کی ضرورت ہے۔ 1500 ملی میٹر لائن کی ٹیسٹنگ فوری طور پر کرنے کی ہدایت MJP کو دے دی گئی ہے اور توقع ہے کہ یہ کام تقریباً 20 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ کمشنر کے مطابق پائپ لائن کی صفائی اور ٹیسٹنگ کے لیے پہلے اس میں پانی بھرا جائے گا، جس کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ نظام میں کہاں اور کتنے لیکیجز موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اپروچ چینل کی تعمیر کے لیے بلاسٹنگ کرنا ناگزیر ہے، تاہم اس سے ریٹیننگ والو کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، اسی وجہ سے PEB کا کام فی الحال ممکن نہیں ہوگا۔ اس مرحلے کی تکمیل کے بعد ہی اپروچ چینل کا کام شروع کیا جائے گا۔ دوسری جانب شہر کی مختلف سڑکوں پر MJP، MSIDC اور گیس کمپنی کی جانب سے کھودے گئے گڑھوں کو بھرنے کے لیے 90 لاکھ روپے کا تخمینہ تیار کیا گیا ہے، جسے منظوری کے لیے جنرل باڈی اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔
कमिश्नर अमोल एड़गे ने भी वाजे किया है कि महाराणा एजेंसी के सुपुर्द जो काम इस वक्त जारी हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मराठवाड़ा की आवाम के लिए राहत भरी खबर यह है कि मगरबी महाराष्ट्र में हो रही बारिश के सबब जायकवाड़ी डैम में 28,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी की आमद का सिलसिला जारी हो गया है। नाजरीन, जून का महीना ख़त्म होने के बावजूद डैम में खातिर ख्वाह पानी न आने से औरंगाबाद समेत पूरे मराठवाड़ा के किसान तशवीश में मुब्तला थे। ताहम अब सूरत हाल बदलती नजर आ रही है। जुमेरात की सुबह डैम में तकरीबन 2,000 क्यूसेक्स की रफ्तार से पानी की आमद रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन सुबह 11 बजे के बाद पानी की आमद में गैर मामूली इजाफा हुआ और ये बढ़कर 28,000 क्यूसेक तक पहुंच गई, जिससे डैम की सतह आब में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। फिलहाल जायकवाड़ी डैम में पानी का ज़ख़ीरा तकरीबन 30% तक पहुंच चुका है। अगर आइंदा दिनों में बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो डैम के ज़ख़ीरे आब में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, जिससे खरीफ सीज़न के लिए पानी की दस्तयाबी बेहतर होने की उम्मीद पैदा हो गई है और मराठवाड़ा के किसानों में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई है। रियासती हुकूमत के 26 में 2026 के GR के मुताबिक शहर में मौजूद सभी जायदादों के इनफरादी PR कार्ड बनाने के लिए जल्द कार्रवाई शुरू होगी। ये इत्तला मेयर समीर राजुरकर और म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेयर समीर राजुरकर और कमिश्नर अमोल एड़गे ने बताया कि इस सिलसिले में एक तजवीज़ आइंदा जनरल बॉडी इजलास में पेश की जाएगी। तजवीज़ की मंजूरी के बाद DPDC से इस मंसूबे के लिए माली इमदाद तलब की जाएगी। फंड्स मौसूल होने के बाद ये रकम लैंड रिकॉर्ड महकमे को फराहम कर दी जाएगी, जबकि मंसूबे पर अमल दरामद के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से महकमे लैंड रिकॉर्ड को ज़रूरी जगह भी फराहम की जाएगी। कमिश्नर अमोल एड़गे के मुताबिक लैंड रिकॉर्ड महकमे के सीनियर अफसरान ने इस मंसूबे का तफसीली खाका तैयार कर लिया है, जिस पर जल्द अमल शुरू होगा। इस काम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग महकमे का अमला लैंड रिकॉर्ड अफसरान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। उन्होंने बताया कि खदीम शहर के अलावा म्यूनसिपल हुदूद में शामिल किए गए 18 देहात का सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ड्रोन सर्वे करेगी। इस दौरान लैंड रिकॉर्ड महकमे का अमला घर घर जाकर 7/12 और PR कार्ड की जाँच करेगा, जिसके बाद शहर की तमाम जायदादों के इनफरादी PR कार्ड तैयार किए जाएंगे। हतमी रिकॉर्ड तैयार करने से पहले शहरियों से एतराज़ात और तजावीज़ तलब की जाएंगी, जिनकी समाअत के बाद कानून के मुताबिक हतमी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। हुक्काम के मुताबिक इस पूरे मंसूबे पर तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ रुपये लागत आने का तखमीना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर समीर राजुरकर, म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाळ और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये भी मौजूद थे। त्यासाठी लॉजिस्टिकचा खर्च असा साधारणतः 6 कोटीपर्यंत खर्च जाऊ शकतो। हे PR कार्ड बनवतानाच्या पूर्ण प्रक्रियेमध्ये नागरिकांना कुठे खर्च होणार नाही, परंतु PR कार्ड झाल्यानंतर जसं ग्रामीणमध्ये स्वामित्व योजना जी आहे, ग्रामीणमध्ये सर्व गावठाणांना जे PR कार्ड शासनाने स्वामित्व योजनेखाली दिलेलं आहे, त्यानंतर ते सनद घेण्यासाठी एक फी शासनाने ठेवलेली होती। ती जी काही फी असेल ती सनद वन टाइम नागरिकांना ते PR कार्ड घेताना काही रक्कम भरावी लागू शकते। आता 7/12 जरी आपल्याला तलाट्यांकडचा सर्टिफाय घ्यायचं म्हटलं तर 15 रुपये, 20 रुपये जे काय ते पानानुसार आहे। तसं वन टाइम सनदला 100 रुपये, 150 रुपये, पण ती रक्कम खूप कमी असणार, म्हणजे त्याचा जो फायदा होणार आता सध्या समजा एखाद्याला त्यांच्या जागेवरती जो फायदा स्वामित्वाचा ग्रामीणमध्ये झालं, मी तो सांगतो, म्हणजे जी पोटेन्शियल असणारी गावं होते त्यांना त्यांच्याकडे रेकॉर्ड ऑफ राईटच नव्हता, मालकीचा काही नमुना नव्हता, त्यामुळे तिथे त्यांना कमर्शियल समजा एखादी बेकरी सुरू करायची आहे, एखादं काही बिल्डिंग वगैरे करायचं आहे, तर ते 7/12 आणि त्या रेकॉर्ड ऑफ राईट नसल्यामुळे अडचणी येत होत्या। तो त्यांना पुरावा हाती मिळाल्यामुळे त्यांना जर तिथे काही ऍक्टिव्हिटी करायची असतील, बँकेचं लोन असेल किंवा इतर काही गोष्टी असतील, त्याच्यासाठी फायदा होणार आहे। त्यामुळे ती रक्कम एकदम नॉमिनल त्यांच्यासाठी राहते। ती प्रॉपर्टी लीज होल्ड आणि फ्री होल्ड म्हणजे काय, ती प्रॉपर्टी सिडकोने लीजवर दिलेली, त्याचा शासनाला वेगळा निर्णय, आणि तो काही छत्रपती संभाजीनगरच्या सिडको पुरता मर्यादित नाही येतो। महाराष्ट्रातल्या सगळ्या सिडकोनी जिथं वसाहती निर्माण केलेल्या आहेत त्या सगळ्या वसाहती ह्या लीज होल्ड मध्येच असतात, आणि तिथं तुमचं जे मत आहे की PR कार्ड नाही, तर असं नसतं। तिथं त्यांचं फक्त लीज होल्डर म्हणून PR कार्ड उल्लेख असतो, लीज होल्डर असतो, त्याचा त्यांना त्रास होतो। पण तो आता सरकार जेव्हा एवढ्या ताकदीने हे निर्णय घेते तेव्हा त्याचाही काही ना काहीतरी निर्णय राज्य सरकार घेईल। विभागाचा शासन निर्णय आलेला आहे, त्यानुसार महानगरपालिका नगरपालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या वाढीव क्षेत्राचा सिटी सर्वे होऊन प्रॉपर्टी कार्ड तयार होण्याबाबत असा हा विषय आहे। याच्यामध्ये आपल्या शहरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी प्रॉपर्टी कार्ड नाही, PR कार्ड नाही,
सिटी सर्वे ऑफिसचं, आणि जिथे 7/12 आहे त्या क्षेत्रामध्ये भूमी अभिलेख विभागामार्फत जी काय आहे ती नियमानुसार कारवाई करून त्या ठिकाणी PR कार्ड दिला जाणार आहे. तर हे शासन निर्णयामध्ये ती प्रक्रिया नमूद केलेली आहे आणि या शासन निर्णयानुसार महानगरपालिका एरियामध्ये या पद्धतीने कारवाई कशी करायची ही प्रोसेस दिलेली आहे. त्यानुसार आपला काही जुन्या शहराचा भाग सोडला किंवा शहराचा जो सेंट्रल पार्ट सोडला तर बाजूला जे आपल्याकडे जी गावं आलेली आहेत, नवीन गावं आलेली आहेत किंवा वेळोवेळी जो शहराचा विस्तार होत गेलेला आहे, आपलं हर्सूल असेल, सातारा देवळाईचा भाग असेल, मुकुंदवाडी असेल, पुंडलिक नगर असेल, हे जे भाग आहेत त्या ठिकाणी 7/12 आहे आणि अडचण 7/12 लोकांची येते की एका 7/12 100 लोकांची नावं असतात आणि लोकांना जर काही समजा काही लोन करायचं असेल किंवा प्रॉपर्टीचा रेकॉर्ड ऑफ राईट म्हणून उपयोग करून जर त्याच्यावरती जर काही त्याचा फायदा करून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी ते 7/12चा उपयोग होणं अवघड होतं. त्यामुळे या शासन निर्णयानुसार आपण आता येणाऱ्या आपल्या सर्वसाधारण सभेसमोर हा विषय ठेवून जे काही याच्यासाठी जी काही तरतूद लागते, आम्ही टेंटेटिव्ह जी काही याच्यासाठी तरतूद लागते ती भूमी अभिलेखकडून काढलेली आहे. जी काही तरतूद लागते ती तरतुदीचं डिटेल भूमी अभिलेख विभागाकडून घेऊन शासन निर्णयामध्ये म्हटलं त्यानुसार जिल्हा नियोजन निधीकडे आपण याची विनंती करणार आहे, निधीची विनंती करणार आहे आणि निधी प्राप्त करून घेऊन आपण भूमी अभिलेख विभागाच्या मदतीने ज्या ठिकाणी 7/12 आहे आणि जिथे लोकांना PR कार्ड नाही तिथे लोकांना PR कार्ड मिळवून देण्याचं हे कारवाई आपण करणार आहे. तर ही माहिती देण्यासाठी आपल्या सर्वांना बोलवलेलं आहे आणि महापौर फुलमरी में एक डेयरी पर FDA अफसरान ने छापा मारा और 3,500 लीटर मुश्तबा मिलावटी दूध जब्त करके उसे तल्फ कर दिया. इसी के साथ 2 दूध डेयरियों को सील लगा दी गई. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक फूड सेफ्टी कमिश्नर तुकाराम मुंडे की सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र मुहिम के तहत FDA की टीम ने फुलमरी में वाक़ सिद्धेश्वर दूध डेयरी पर छापा मारा. इस कार्रवाई में तकरीबन 3,500 लीटर मुश्तबा दूध और दूध में मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाला गोवर्धन दूध पाउडर जब्त किया गया. जब्त शुदा दूध की मालियत तकरीबन 1,32,000 रुपये बताई जा रही है, जिसे मौके पर ही तल्फ कर दिया गया. तहकीकात के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ कि ये दूध शिव कृपा डेयरी के ज़रिए मुख्तलिफ डेयरियों को सप्लाई किया जा रहा था. इसके बाद FDA ने सिद्धेश्वर डेयरी और शिव कृपा डेयरी दोनों ही को सील कर दिया. इस मामले में फुलमरी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मुश्तरका तौर पर मज़ीद तहकीकात कर रही है. नाजरीन, खालिस दूध को सेहत की अलामत समझा जाता है, ताहम जब इसी दूध में मिलावट की जाए तो ये मुफीद ग़िज़ा बीमारियों का सबब बन जाती है. चंद अफराद की नाजायज़ कमाई की ख्वाहिश लाखों शहरियान खुसूसन मासूम बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों की सेहत को शदीद खतरात से दो चार कर रही हैं. फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की ये कार्रवाई सिर्फ एक डेयरी के खिलाफ इक़दाम नहीं बल्कि मिलावट के कारोबार में मुलव्विस अनासिर के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि अवाम की सेहत से खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी. शहरियान का भी मतालबा है कि ऐसी कार्रवाइयाँ वक्ती न हों बल्कि तसलसल के साथ जारी रहें ताकि मिलावट माफिया का मुकम्मल खात्मा किया जा सके और हर शहरी तक महफूज और खालिस दूध की फराहमी यकीनी बनाई जा सके. ज़िला जालना में शोबे ज़राअत की जानिब से किसानों में महाबीज कंपनी के सोयाबीन के बीज मुफ्त फराहम किए गए थे, लेकिन वो परवान न चढ़ सके, जिसके सबब किसानों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है और उन्हें फिर से बोयाई करनी पड़ रही है. ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना के रेवगांव में महकमा ज़राअत की जानिब से एक ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए मुफ्त तकसीम किए गए महाबीज कंपनी के सोयाबीन बीजों की अफजाइश न होने की शिकायत सामने आई है. ज़राए का कहना है कि गांव के 15 किसानों ने तकरीबन 25 एकड़ अराजी पर इन बीजों की बोयाई की थी. किसानों ने खेती की तैयारी, बोयाई और दीगर ज़रूरी कामों पर लाखों रुपये खर्च कर दिए, लेकिन बीज न उगने के बाद अब उन्हें दोबारा बोयाई करना पड़ रही है, जिससे उन पर इजाफी माली बोझ पड़ गया है. किसानों का कहना है कि दोबारा बोयाई से न सिर्फ अखराजात बढ़ गए हैं बल्कि फसल की पैदावार भी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो चुका है. इसीलिए उन्होंने हुकूमत और महकमा ज़राअत से फौरी मुआवजा और मदद फराहम करने का मुतालबा किया है. दूसरी जानिब महकमा ज़राअत के क्वालिटी कंट्रोल विंग के अफसरान का कहना है कि महाबीज कंपनी के बीजों से मुतालिक अब तक तकरीबन 40 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं.
मुतासिरा खेतों का मुआयना किया जा रहा है और मज़कूरा बीजों के नमूने जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद आइंदा की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आम्हाला हे कृषी विभागाने जवळपास 25 बॅग दिलेले होते. हे बॅग 25 पैकी एकही बॅग आमची उगवलेली नाही. 15 दिवस झाले पेरून याला, जवळपास म्हणजे 15 नाही 10 दिवस झाले याला पेरून. 1 तारखेला पेरणी झालेली आहे. आजपर्यंत त्याच्यानंतर आजूबाजूला पेरण्या झालेल्या आहे. ते बियाणं सुद्धा तरारून उगलेलं आहे. हे बियाणं कालच कृषी विभागाचे अधिकारी येथे पाहून गेलेले आहेत. त्यांनी स्वतः सांगितलं की 0% जर्मिनेशन आलं म्हणे या बियाणाला. आमची एकच कळकळीची विनंती आहे शासनाला, आमचा जो काही खर्च झालेला आहे कमीत कमी तेवढा खर्च आम्हाला भरून देण्यात यावा. 100% आम्हाला कमीत कमी 30% उत्पन्नात फटका बसणारच आहे. कारण ऑलरेडी 10 दिवस लेट झाले आणि आणखीन 2 दिवस थांबायचे. आता आज कृषी विभाग आपल्या महामंडळाचे पाटील साहेब ते म्हणे मी स्वतः सकाळीच त्यांचा फोन आला, तर ते म्हणे मी एकदा बघून घेतो म्हणे. तर ते आणखीन काही आले नाही, पण ते येतील असं म्हटलेले आम्हाला. आमचे काही नाही, आमचा जो खर्च झालेला आहे तेवढा तत्काळ शासनाने द्यावा. आम्हाला बियाणंही शासनानं दिलं लवकर तर आमचं पेरणं होईल, हीच आमची शासनाकडे मागणी आहे. अंकुश सुखदेव परकाळ, रेवगाव. कल्याण डोंबिवली में डॉक्टर्स पर हुए हमले की मजम्मत में ज़िला जालना के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और दीगर डॉक्टर तंजीमों की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया। एहतजाज के दौरान डॉक्टर्स पर बार बार होने वाले हमलों को रोकने के लिए सख्त और मौसर इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। मुज़ाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स पर हमले किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और हम सब एक हैं जैसे नारे लगाते हुए हुकूमत से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। डॉक्टर्स का कहना था कि मरीज़ों की खिदमत अंजाम देने वाले तिब्बी अमले पर हमले न सिर्फ अफसोसनाक हैं बल्कि पूरे तिब्बी निज़ाम के लिए तशवीश का बास बने हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर क़ानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और हमले में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस एहतजाज में डॉक्टर बली राम बागुल, ज़िला सिविल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गवारे, डॉक्टर होलानी, डॉक्टर तौर समेत मुख्तलिफ डॉक्टर तंजीमों के अहदेदारान, मेडिकल ऑफिसर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और अस्पताल के मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर्स के खिलाफ बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर फौरी काबू पाने के लिए हुकूमत को ठोस इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि तिब्बी इमला बिला खौफ व खतर अपनी खिदमत अंजाम दे सके। खरं तर ही जी काही घटना घडली तर रात्रंदिवस काम करणाऱ्या डॉक्टरांवरती आणि स्टाफ तेथील कर्मचाऱ्यांवरती जर असे हल्ले होत राहिले तर निश्चितच सेवा देत असताना कुठेतरी मनामध्ये कचरा येईल आणि येणारा जो पेशंटचा रिझल्ट आहे त्याच्यामध्ये निश्चितच फरक पडेल। त्यामुळे मी आज या घटनेचा निषेध तर करतोच, सोबत समाजातील सर्व घटकांना हे आव्हान करतो की अशा पद्धतीच्या कृत्यातून निश्चितच डॉक्टरांचे मनोधैर्य खचून जातील, स्टाफचे काम करण्याचे मनोधैर्य खचतील आणि याच्यातून निश्चितच समाजाचा ऱ्हास होईल। ही घटना अत्यंत निंदनीय आहे, कारण डॉक्टर आणि सिस्टर सर्व रुग्णसेवेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारे निष्काळजीपणा होणार नाही याची आम्ही सतत आमच्या स्वतःची पर्वा न करता कार्य करत असतो आणि त्या बदल्यात जर अशा प्रकारच्या मारहाणीच्या घटना घडत असतील तर याचा सर्व स्तरावरून निषेध होणं अत्यंत गरजेचं आहे। त्याचाच एक भाग म्हणून आज या रुग्णालयामध्ये विविध संघटनामार्फत सर्व रुग्णालयीन कर्मचारी सहभागी होऊन आम्ही या घटनेचा निषेध करत आहोत। आंदोलन दिवसभर चालणार आहे का कसं? नाही, फक्त निषेध या ठिकाणी आम्ही नोंदवत आहोत। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टैक्स वसूली मुहिम चौथे हफ्ते में भी जारी रही, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ एक ही दिन में 13 प्रॉपर्टी सील की गईं और 39,35,000 रुपये इमलाक टैक्स वसूल किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते टैक्स वसूली मुहिम को मिलने वाले मुस्बत रद्द अमल के बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की हिदायत पर गुज़िश्ता रोज़ यानी 10 जुलाई को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम 10 जोन दफातर में दोबारा खुसूसी मुहिम चलाई गई। कमिश्नर की हिदायत के मुताबिक एडिशनल कमिश्नर कल्पिता पिंपड़े और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर विकास नवाड़े ने हर जोन के लिए 15 से 20 बिग डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तैयार करके कार्रवाई की जिम्मेदारी मुताल्लिका टीमों को सौंपी थी, जिसके बाद जोन वाइज कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। गुज़िश्ता रोज़ कार्रवाई में जोन नंबर 3 में 1 जायदाद, जोन नंबर 5 में 2 जायदादें सील की गईं और 15,77,000 रुपये टैक्स वसूल किया गया, जबकि जोन नंबर 6 में 2 जायदादें सील करते हुए 7,08,000 रुपये वसूल किए गए। इसी तरह जोन नंबर 7 में 2 लाख रुपये का टैक्स वसूल किया गया और जोन नंबर 9 में 2 जायदादें और जोन नंबर 10 में 6 जायदादें सील की गईं, जहां से
14,50,000 रुपये टैक्स वसूल किया गया। म्यूनसिपल इंतजामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 13 जायदादें सील की गईं और 39,35,000 रुपये का बकाया प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि बिग डिफ़ॉल्टर्स के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से 50 अफराद का एक काफ़िला गुज़िश्ता रोज़ उम्रा के लिए रवाना किया गया। अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर मोहम्मद वसीम ने बताया कि उनके इदारे की जानिब से हर माह 3 काफ़िले उम्रा के लिए रवाना किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मक्के मुकर्रमा में आज़मीन की रिहाइश हरम शरीफ से वॉकिंग डिस्टेंस पर, जबकि मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी वॉकिंग डिस्टेंस पर फराहम की जाती है ताकि ज़ायरीन को इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हासिल हो। मोहम्मद वसीम ने मज़ीद बताया कि आज़मीन की सहूलत के लिए यहाँ से ही उलमा और दीनी रहनुमाओं को भी साथ रवाना किया जाता है ताकि उम्रा के तमाम मनासिक सही तरीके से अदा किए जा सकें। इसके अलावा हिंदुस्तानी बावर्चियों के हाथों तैयार करदा जायकेदार और म्यारी खाने का भी खुसूसी इंतज़ाम किया जाता है। उन्होंने बताया कि 27 जुलाई को मज़ीद 50 आज़मीन पर मुश्तमिल एक काफ़िला उम्रा के लिए रवाना होगा, जबकि रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में 7 अगस्त, 10 अगस्त और 12 अगस्त को 3 खुसूसी काफ़िले रवाना किए जाएंगे। इन काफ़िलों के आज़मीन ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मदीने मुनव्वरा में क़याम करेंगे। मोहम्मद वसीम ने ख्वाहिशमंद हज़रात से अपील की है जो अफराद ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर उम्रे की सआदत हासिल करना चाहते हैं, वो जल्द अज जल्द अल-अक़सा टूर्स एंड ट्रैवल्स के दफ्तर हिल टॉप बिल्डिंग, सिटी चौक, औरंगाबाद से रब्ता करें, क्योंकि महदूद नशिस्तें ही बाकी रह गई हैं और बुकिंग का सिलसिला जारी है। मोहम्मद वसीम ने मज़ीद बताया कि दर्स व तदरीस के शोबे से जुड़े अफराद भी उम्रे की सआदत हासिल कर सकें, इस गर्ज से गुज़िश्ता दिनों आम खास मैदान पर मुनक़िदा फ़ीस्ट फेस्टिवल में खुरा अंदाज़ी के ज़रिए रहबर प्राइमरी स्कूल की जो टीचर मुंतखब हुई थी उन्हें गुज़िश्ता रोज़ उम्रा के लिए रवाना किया गया है। इसी तरह हज 2026 के लिए मुल्क के मुख्तलिफ़ मकामात से 120 अफराद को उनके इदारे ने सऊदी अरब रवाना किया था और फ़रीज़ हज अदा करने के बाद ये हाजी गुज़िश्ता माह अपने वतन लौट आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस काफ़िले में टोटल 53 हुज्जाज जा रहे हैं उम्रे के लिए और जो है यहाँ से एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट से जिद्दा जाएंगे और जो है वहाँ पर होटल भी मक्का में हमारी क़रीब है। खाने में जो है अपने महाराष्ट्रियन टाइप के ही खाने हैं पूरे, और ख़ास बात यह है कि हमारे मसाला किराना यहीं का रहता और कुक भी अपने ही रहते, उसमें हाजी लोग को खाने में कोई नयापन नहीं लगता, पूरा जो है जो रेगुलर खाते हुए है। और वहाँ की मक्का की ज़ियारत है, मदीना की ज़ियारत है और 4 उम्रे है, 4 उम्रे भी टूर की तरफ से करवाए जाते। डायरेक्ट फ़्लाइट है और आने जाने का टिकट हम पहले ही दे देते हाजी को कि भाई वन वे करके नहीं देते, वन वे दिए तो आते वक्त परेशानी होती, इसलिए आने जाने का टिकट साथ में ही बनाते। और जो है वापसी भी इंशाल्लाह मदीना से जिद्दा आएंगे, जिद्दा से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट है। अगला काफ़िला है हमारा 27 तारीख़ को है, 27 तारीख़ को 50 लोग हैं। उसके बाद रब्बिल अव्वल के 3 काफ़िले हैं, अगस्त की 7 तारीख़ को, 10 तारीख़ को और 12 तारीख़ को, जिसमें जो है 7 तारीख़ का 20 दिन का रहेगा, 10 और 12 तारीख़ का 15 दिन का रहेगा और मदीने शरीफ में जो है तो 12 रब्बिल अव्वल होगी इंशाल्लाह। पासपोर्ट जितना जल्दी हो गया तो उतना बेहतर है, वीज़ा लगाने में आसानी होती, टिकट लेने में आसानी होती। हमारा स्टाफ के भी, मेरे लड़कों के अलावा मेरे 2 बेटे हैं, तो कोई ना कोई घर का आदमी रहता और स्टाफ के 5 मेंबर रहते, तो हॉस्पिटल के लिए कभी ज़रूरत पड़ जाती, कभी जो है तो हाजी खो जाता, फिर नए काफ़िले आते तो कोई हाजी कोई हमारा जो है मेंबर एयरपोर्ट जाता लाने के लिए, कोई छोड़ने के लिए, तो टोटल ऐसा 5-6 लोग की टीम रहती है हमारी। हाँ, खाने में सबको बतला देते, बैनर लगा हुआ रहता, ये टाइम का खाना रहेगा, सुबह का नाश्ता इतने बजे रहेगा, ज़ोहर बाद का ये रहेगा, रात का सब टाइम टू टाइम रहता। अल्हम्दुलिल्लाह बुफ़े लग जाता है और बुफ़े में 6 से 7 8 टाइप के खाने रहते हैं अलग अलग। हाँ बिल्कुल मिलता है। कुछ ऐसे रहते छोटे बच्चे आते हैं, उनके लिए दूध, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ये चीज़ का इंतज़ाम रहता। कोई हाजी बोलते हम लेट आएंगे हरम से,
उनका खाना अलग निकाल के रख दिया जाता, हर तरह की सहूलत रहती। मेरा नाम है अब्दुल वसीम अब्दुल कादर, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिटी चौक, औरंगाबाद, 8055355577। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद दाऊद, अल अक्सा टूर्स एंड ट्रैवल्स, सिटी चौक, औरंगाबाद से। हमारे यहाँ पर 15 दिन और 20 दिन के उम्रा की ग्रुप्स अवेलेबल है, जिसमें हम औरंगाबाद से औरंगाबाद तक की सर्विस देते हैं हाजी लोगों के लिए। इसमें डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल होती है, वीज़ा, इंश्योरेंस और रिटर्न टिकट्स जो है तो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा 4 उम्रा करवाते हैं हाजी लोगों को। 15 दिन वाले ग्रुप में जो है तो 9 नाइट्स और 10 डेज़ का स्टे मक्का में होता है, 4 नाइट्स और 5 डेज़ का स्टे मदीना में करवाते हैं हम लोग, और इसी के साथ साथ मक्का और मदीना की ज़ियारतें करवाते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात अंधारी में मौजूद एक गुरुकुल संस्थान के तलबा में फूड पॉइज़निंग होने का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है। 3 तलबा को ख़ै, मतली और पेट में दर्द होने के सबब 16 मुतासरा तलबा का घाटी अस्पताल में इलाज जारी है। नाजरीन, सिल्लोड़ तालुक़े के अंधारी गांव में वाक़ श्री महंत अर्जुन दास आध्यात्मिक गुरुकुल संस्थान में चंद तलबा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद इंतज़ामिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 3 तलबा को मतली, ख़ै और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद एहतियाती तदबीर के तौर पर मजमूई तौर पर 16 तलबा को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। शुबा है कि 3 रोज़ कबल लाए गए नूडल्स खाने के बाद ये मामला पेश आया, ताहम फूड पॉइजनिंग की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमा इस मामले की तहक़ीक़ात कर रहा है, जबकि हुक्काम के मुताबिक फ़िलहाल तमाम तलबा की हालत मुस्तहकम है और उनकी तिब्बी निगरानी जारी है। म्यूनसिपल घंटा गाड़ी में मेडिकल बायोवेस्ट डालने की पादाश में कैर अस्पताल पर 25,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की हिदायत और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदकिशोर भोंबे की निगरानी में शहर भर में 100% वेस्ट सेग्रेशन की खुसूसी मुहिम जारी है। इसी मुहिम के दौरान जोन नंबर 7 वार्ड नंबर 21 के सूदगिरनी चौक इलाके में मुआयना करते हुए न्यू केयर अस्पताल की जानिब से बायोमेडिकल वेस्ट को आम कचरे के साथ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की घंटा गाड़ी में डालने का मामला सामने आया, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए अस्पताल पर 25,000 रुपयों का जुर्माना आयद किया गया। म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने कहा है कि बायोमेडिकल कचरा सफाई मुलाजमीन की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक होता है, इसलिए उसके गलत इंतज़ाम के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की गई है। क़वानीन के मुताबिक तमाम अस्पतालों और तिब्बी इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो बायोमेडिकल वेस्ट आम कचरे में न मिलाएं, बल्कि सिर्फ हुकूमत की मजाज एजेंसी के हवाले करें, ताकि उसको साइंसी और महफूज तरीके से तल्फ़ किया जा सके। ये कार्रवाई चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ओम बड़े की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस मौके पर प्रभाग प्रमुख सुधाकर खरात, नागरिक मित्र पथक के संतोष नौगिरे, गौतम वानखेड़े, राव साहब इधाते और सुपरवाइज़र सतीश खरात भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने खबरदार किया है कि शहर में कचरे की दुरुस्त दर्जाबंदी न करने और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाले अस्पतालों और दीगर इदारों के खिलाफ आइंदा भी इसी तरह की सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एएमसी कमिश्नर के बाद अब जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर ने भी दफ्तरी कामकाज में अवामी नुमाइंदों के रिश्तेदारों की मुदाखलत पर रोक लगाने की गर्ज से सख्त अहकामात जारी किए हैं, जिसके सबब अवामी नुमाइंदों और उनके रिश्तेदारों में खलबली मची हुई है। जालना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी अवामी नुमाइंदों के रिश्तेदारों की बढ़ती हुई मुदाखलत पर काबू पाने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने अहम फैसला किया है। जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक अब सिर्फ मुंतखबा कारपोरेटर्स और खातून कारपोरेटर्स ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी और दफ्तरी मामलात में हिस्सा ले सकेंगे। सर्कुलर में वाज़ेह किया गया है कि कारपोरेटर्स के शौहर, बीवी, बेटे, भाई या दीगर रिश्तेदार किसी भी दफ्तरी काम में मुदाखलत नहीं करेंगे और न ही अफसरान या मुलाजमीन पर किसी किस्म का दबाव डालेंगे। म्यूनिसिपल कमिश्नर अंजलि शर्मा ने MCN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस फैसले का मकसद इंतज़ामी शफाफियत, जवाबदही और सरकारी उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत को रोकना है, ताकि शहरियान के काम कानून और ज़ाब्तों के मुताबिक अंजाम दिए जा सकें।
सर्वांना नमस्कार. मी महानगरपालिका आयुक्त जालना. आता जे संबोधन आमची मीडिया पर्सन इथे करते तो पत्र आम्ही यासाठी काढलंय की आमच्याकडे थोडीफार अशी कंप्लेंट आली आहे की आपले जे नगरसेवक काउन्सिलर्स आहेत त्यांची जी फॅमिलीज आहे तो ऑफिशियल कामामध्ये हस्तक्षेप करतात. आता महानगरपालिका आयुक्त म्हणून आणि मेयर जे असले आपले महानगरपालिका ऑफिस जे आहे त्याचे 2 भाग आहे आणि दोघी खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक आहे आपला प्रशासनाचा भाग ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि एक आहे आपला पॉलिटिकल भाग जे लोकप्रतिनिधी आहे त्यांच्या सहभागाने आम्ही जे काम करतोय त्यांची माहितीने जे काम करतोय ते सगळ्यांची मिळून जबाबदारी आहे. पण ऑफिशियली आमचे रूल्स असतात की पर्सनल फॅमिली किंवा माझी असली किंवा नगरसेवकांची असली त्यांना हस्तक्षेप ऑफिशियल मॅटरमध्ये केला नाही पाहिजे. तो हे रेकॉर्डवर घेण्यासाठी आम्ही तो पत्र काढलाय. तसाच आम्हाला हे पण निर्देशनात आलंय आता जसं प्रशासन असलं किंवा नगरसेवक असले सगळ्यांचं एक बाउंड्री ऑफ रूल आहे. म्हणजे माझी काहीतरी लिगल पॉवर्स आहे, काहीतरी माझे खालचे HODsची आहे, काहीतरी माझे वरचे ऑफिसर्सची आहे. तशीच आपले जे नगरसेवक आहेत त्यामध्ये महापौर मॅडम, उपमहापौर साहेब, आपले सभापती सगळी सभाचे सभापती झाले विषयाबद्दल आणि बाकी नगरसेवक सगळ्यांची एक कायद्याने मर्यादा ठरवली आहे. तो मर्यादामध्येच काम झालं पाहिजे आणि तो मर्यादेचं पालन करून आपले सगळ्यांना एकत्र होऊन लोकांचं कार्य जे केलं पाहिजे या पॉझिटिव्ह कृत्यानेच थोडा हे मी स्ट्रॉंग स्टँड घेतलाय की काम जे आहे ते लिगलीच झालं पाहिजे आणि असा हस्तक्षेप त्यांच्याकडून किंवा माझ्याकडून जे लीगल नाही आहे तो झाला नाही पाहिजे. त्यासाठीचे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आम्ही काढलं. सज्जाद भट्टी के यूज़र आईडी से मुबैना राब्ते के शुबे में महाराष्ट्र ATS ने 14 अफराद की तलाश में औरंगाबाद समेत 4 अजला में छापे मारे. बावसूख ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक दहशत गर्दी मुखालिफ दस्ते ATS ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सज्जाद भट्टी के यूज़र आईडी से मुबैना राब्ते के शुबे में 14 अफराद की तलाश के लिए औरंगाबाद, जालना, बीड़ और उस्मानाबाद अजला में बैक वक्त छापे मारे. कार्रवाई के दौरान औरंगाबाद से 6 अफराद को तहवील में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक और तकनीकी जांच की जा रही है. हुक्काम के मुताबिक फ़िलहाल तफ्तीश जारी है और जब्तशुदा इलेक्ट्रॉनिक मवाद की जांच के बाद ही मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे. ATS इस पूरे मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात कर रही है. सेनगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गाड़ी समेत ममनुआ गुटखे का बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया. ज़राए का कहना है कि सेनगांव पुलिस को खुफिया तौर पर इत्तला मिली थी कि एक सियाह और पीले रंग की गाड़ी के ज़रिए विमल, राजनिवास और दीगर ममनुआ गुटखे की बोरियां सेनगांव लाई जा रही हैं. इत्तला की बुनियाद पर पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम जाधव की क़यादत में पुलिस टीम ने सेनगांव रिसोड़ कौमी शाहराह पर सलदली फाटा के करीब नाकाबंदी की. कार्रवाई के दौरान मुश्तबा गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें ममनुआ गुटखे से भरी बोरियां बरामद हुईं. पुलिस ने गुटखे के ज़ख़ीरे के साथ गाड़ी भी जब्त कर ली, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 2,09,000 रुपये बताई जा रही है. इस मामले में 2 अफराद के खिलाफ सेनगांव पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि इस गैर कानूनी कारोबार से जुड़े दीगर अफराद के बारे में भी तहक़ीक़ात जारी हैं. ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर संग्राम जाधव की रहनुमाई में बिट जमादार राजेश जाधव और उनकी टीम ने अंजाम दी, जिसके बाद सेनगांव तालुक़े में गैर कानूनी गुटखा कारोबार करने वालों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया है. वड़गांव कोल्हाटी में एक मामूली बात पर हुए झगड़े ने पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर लिया, जिसमें लोहे के राड से हमला करने पर एक नौजवान का हाथ फ्रैक्चर हो गया. पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक वड़गांव कोल्हाटी के गंगोत्री पार्क इलाके में साइकिल टकराने के मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया. ये वाक़या 8 जुलाई की सुबह तकरीबन 8:30 बजे हनुमान मंदिर के करीब पेश आया. शिकायत कुनिंदा संतोष चौहान के मुताबिक झगड़े के दौरान मुलजिमीन ने पहले गाली गलौज की और फिर मारपीट शुरू कर दी. इसी दौरान विनायक गौली ने मुबैना तौर पर लोहे की रॉड से उनके हाथ पर वार किया, जिसके नतीजे में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया. इस मामले में MIDC वालुज पुलिस ने शिवराज गौली और विनायक गौली के खिलाफ मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर.
آج دوپہر تک ہر حال میں اضافی پانی کی سپلائی بحال کی جائے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کے سخت ہدایت کے بعد متعلقہ ایجنسی اور کانٹریکٹر آ گئے حرکت میں۔ اضافی واٹر سپلائی کے لیے پمپنگ کا آج دوپہر سے کر دیا گیا آغاز۔ ملاوٹی اشیاء فروخت کرنے والوں کے خلاف FDI کی چھاپہ مار کارروائی کا سلسلہ جاری۔ دودھ میں ملاوٹ کرنے والے ایک بڑے ریکٹ کا کیا پردہ فاش۔ 3500 لیٹر مشتبہ ملاوٹی دودھ کیا گیا ضبط، 2 ڈیریاں سیل۔ تعلقہ سلوڑ کے مضافات اندھاری میں واقع شری مہند گروکل کے طلبہ میں مبینہ فوڈ پوائزننگ، 16 طلبہ گھاٹی اسپتال میں زیر علاج۔ 2 روز قبل منگوائی گئی نوڈلز کھانے سے ہوئی ہوگی طلبہ کی طبیعت خراب، ماہرین کا قیاس۔ اور ATS کی بڑی کارروائی، 14 مشتبہ افراد کی تلاش میں اورنگ آباد سمیت 4 اضلاع میں بیک وقت مارے گئے چھاپے۔ سجاد بھٹی کے یوزر ID سے مبینہ رابطے کے شعبے میں کی گئی کارروائی، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور دیگر الیکٹرانک آلات کیے گئے ضبط۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبرنامہ اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔